So students, today we are doing problems based on Gauss theorem. It is lecture 11 of electrostatics. So some problems based on Gauss theorem. Problems based on Gauss theorem. हिंट कल दिया था मैंने, फिर से दे रहा हूं मैं. For solid sphere, electric field inside EI is electric field inside into Gaussian surface area. Spherical Gaussian surface होता है. It is always 4 pi r square. It is 1 by epsilon naught integration 0 to r. It is charge density. It may be uniform or non-uniform. 4 pi r square dr. It is the small charge. तो यहाँ से हम small charge जब calculate करेंगे तो inside the Gaussian surface it is the value of what? The charge enclosed. It is actually the enclosed charge. So we may find the value of electric field inside the sphere. While for outside, मैंने बताया था, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मैंने, यूज द फॉर्मूला 1 by epsilon naught is q in by epsilon naught. अब आउटसाइड अगर लेंगे तो पूरा का पूरा स्फेयर इज आउट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो इंटीग्रेशन लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to रेडियस ऑफ द स्फेयर. In first case we have r is less than small r, while in the second case we have r greater than the radius of the sphere. The rho charge density 4 pi r square dr we have to use. Now it will be the value of what? Charge enclosed. So here solving we get the value of field intensity outside the sphere. It is for solid sphere. Similarly we find field intensity for the solid cylinder of infinite length. Here length of the cylinder is infinite, right? So inside the cylinder, A inside, Gaussian surface area is always curved. It is 2 pi rl, that is equal to 1 by epsilon naught into dr. It is charge enclosed. यहाँ से हम find करेंगे E inside the cylinder, while outside the cylinder Gaussian surface radius is greater than the radius of the cylinder. E outside 2 pi rl, it was 1 by epsilon naught 0 to. अब तो पूरा का पूरा सिलेंडर का पार्ट ही गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो वी हैव टू टेक द लिमिट फ्रॉम 0 टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर. रो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट? चार्ज इनक्लोज्ड आउटसाइड द सिलेंडर. अगर गॉसियन सरफेस मीन्स किसी पॉइंट पे फाइंड करना है, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस रेडियस इज ग्रेटर देन आर. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ व्हाट? ई आउट. तो ये हिंट दिया था. अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस चेक करते हैं. देखिए, we come to one question. Suppose it is a solid sphere of radius r. Of radius r, and its charge density is, suppose, rho. We have to get the value of, find in and e out. ये हमें फाइंड करना है
फर्स्ट पार्ट है if rho is equal to rho naught means density here is constant, and second if rho is equal to ar to the power, any power we take, suppose it is n, where n is greater than equal to 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट. तो सी we come to the first part. काफ़ी सिंपल है अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले समझा हुआ है ना. तो here we get A inside and here we get A outside. A inside Gaussian surface radius is r 4 pi r square. क्या बताया था मैंने लेने के लिए? 1 by epsilon naught into q in. In place of rho we have what? Rho naught. Rho we have taken rho naught. 4 pi r square dr. It should be integrated from 0 to r. तो 4 पाई और 4 पाई तो कैंसिल हो गया. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो गेट द रिजल्ट ए इनसाइड इज इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. ये तो हमने डिराइव किया था जब चार्ज डेंसिटी वाज यूनिफॉर्म. आउटसाइड वाला भी डिराइव किया हुआ है. डायरेक्टली हम आते हैं. एकेडमिक्स में डायरेक्टली आप ऐसे यूज़ नहीं कीजिएगा, वो फिर मार्क्स मिलेगा नहीं. वहाँ प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, जैसे पहले बताया वैसे ही करेंगे. हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. ए आउटसाइड 4 pi r square. It is 1 by epsilon naught. Now it should be integrated from 0 to r. Rho we have rho naught 4 pi r square dr. तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो we get the result E outside is equal to rho r cube divided by 3 epsilon naught r square. ओके. तो ये दोनों ही पार्ट जो है प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ. यहाँ आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं. अब इसका हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं. Now see, in the second part we have charge density rho is equal to a r to the power n, where a is constant and r is given. It is the radial distance from the center. Okay, तो यहाँ भी दो पार्ट लिया हमने. वन इज फॉर इनसाइड द स्फीयर एंड द अदर वन इज फॉर आउटसाइड द स्फीयर. क्या बताया मैंने? ए इनसाइड n2 4 pi r square. It is 1 by epsilon naught into integral limit 0 to r. Now in place of density we have to take what? ar to the power n into 4 pi r square dr. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजिली. व्हाट वी हैव a in into r square is equal to a by epsilon naught, और इसका इंटीग्रल लिमिट किया हमने n+2. इट इज r n+3 divided by n+3. now simplify it to get the result. so what we get? a inside is equal to a by epsilon naught n+3 and it is r to the power n+. अब ये जो रिजल्ट मैंने दिया है यहीं पे मैंने प्रीवियस दिया था. देखिए f रो इज कांस्टेंट. रो इज कांस्टेंट ये कब होगा? f n इज इक्वल टू हियर 0. तो अगर n का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं यहाँ पे, n इज 0, देन यू गेट a इनसाइड इज इक्वल टू ar डिवाइडेड बाई
3 एप्सिलॉन डिराइव किया था ना हमने अभी, और 1/3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हमने डिराइव कर लिया। नाउ वी कम टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए ईओ इट इज 4πr² 1/ε0 0 to r। dr, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ। अब आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। आज होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा मैं, ठीक है, जो सजेस्ट करूंगा वो आप ट्राई कीजिएगा। नाउ वी कम टू वन मोर क्वेश्चन। देखिए, एक सॉलिड सिलेंडर लिया है हमने। दिस वन इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ओके, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड अ सॉलिड सिलेंडर। ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए, रो इज इक्वल टू रो नॉट एंड ए आर क्यूब हमने लिया है। Here A is constant and again R is what? It is the radial distance from center, right? तो for A is equal to rho into rho naught, तो यहाँ पे मैंने बताया E into 2πRL is equal to 1/ε0 0 to R लिमिट लेना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, गेट द रिजल्ट। एंड सेकेंड पार्ट में है E आउटसाइड, भी हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड पार्ट वी हैव when rho is equal to, it is non-uniform, right? Now we come to the result inside and outside। तो सिलेंडर में क्या बताया था इनसाइड के लिए? ए इनसाइड 2πRL, right? ए इनसाइड into 2πRL, that is equal to 1/ε0। limits should be 0 to R। in place of rho we'll write AR cube into 2πRL dr। solve it to get the value of what? Inside। similarly for outside, E outside into 2πRL, that is 1/ε0। यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? 0 to कैपिटल R, AR cube 2πRL dr। then solve to get the value of what? E out। easily find कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। अभी क्वेश्चन हम देखते हैं। थिन शीट का एंड थिक सरफेस का, चार्ज सरफेस का जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था। नाउ वी कम टू अ क्वेश्चन। हियर वी हैव टू डू E inside and outside a thick charged surface of uniform charge density, uniform charge density rho, thickness T and infinite area it has। तो ये हमें फाइंड करना है थिक चार्ज सरफेस का इनसाइड एंड आउटसाइड। ये वॉल्यूमेट्रिक है, दैट्स वाई चार्ज डेंसिटी इज रो, थिकनेस इज डिफाइंड एंड एरिया इज व्हाट? इनफाइनाइट। तो सी वी हैव अ थिक चार्ज सरफेस ऑफ infinite area but thickness is defined। suppose this one is the part of the, this thickness we have given T। suppose this one is the central axis, it is the central axis
अगर 3D में देखें तो दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ऐसे है ये, ठीक है, इट इज लाइक दिस, ओके, and the charge density is defined it is like this, it is the central layer, okay, ये इसका central layer है, means this side the distance is t by 2 and this side also it is t by 2 and charge density is given uniform, इसका charge density is defined, it is rho which is uniform, ठीक है। तो we have to get field intensity inside and outside the sheet, तो पहले हम फाइंड करते हैं inside the sheet, right? So see, so see this one is the infinite thin sheet, it is infinite thin sheet and this one is what, the central axis, right? It is thickness t and it is suppose positively charged, ये part of sheet है, वहाँ 3D व्यू लिया था, यहाँ 2D लिया है। Suppose we have to get electric field intensity at this point, it is P। तो क्या बताया मैंने, you draw a Gaussian surface passing through the point P where field intensity has to be determined। एक Gaussian surface हमने ड्रॉ किया, यहाँ field intensity चाहिए, this one is the Gaussian surface, this one is suppose the cylindrical Gaussian surface, right? Now we have three surfaces here, cylinder में 3 surfaces होते हैं, अब इस point P पे चाहिए and this point is suppose at a distance what, r, ये central axis से suppose कितने distance पे है, r distance पे, तो अब 3 surfaces हमने लिया, one is this, it is suppose dA2, one surface is this, it is dA3 and one surface is this, it is dA1। अब मैंने ये बताया है कि फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखें यहाँ पे, इट इज E, here also it is E, तो θ2 we have 0 degree, θ3 is also 0 degree, but what about this part, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस एंगल θ3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिलेंडर में मैंने बोला था कि थिन शीट हो या थिक सरफेस हो, दो फ्लैट सरफेसेस को लेंगे, कर्व सरफेस वाले का फ्लक्स विल बी व्हाट, 0। नाउ वी हैव टू गेट द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस, तो वी कैलकुलेट द चार्ज फॉर दिस पार्ट, फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस दिस डिस्टेंस वाज r, then this distance is also r, suppose this area is a, अपर एंड लोअर दोनों ही एरिया क्या है, इक्वल है, तो वी हैव टू गेट दिस चार्ज, ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिया है, इसका चार्ज कैलकुलेट करना है, इट इज वॉल्यूमेट्रिक, तो व्हाट विल बी द चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू व्हाट, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट, 2r, तो वी गेट द रिजल्ट q in इज इक्वल टू 2ar, right? Now further see, now using Gauss theorem, अब हमने Gauss theorem यूज किया, फ्लक्स that is E dot dA, 3 surfaces when be divided है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, E dA1 cos of 90 degree for the curved surface, E dA2 cos 0 degree for the plane, okay,
इट इज फॉर प्लेन सरफेस। एंड अगेन लोअर प्लेन के लिए EDA3 cos 0 degree, it is also for what, the plane surface, that is equal to q in by epsilon naught। तो 1 by epsilon naught चार्ज इनक्लोज्ड अभी हमने कैलकुलेट किया था, it was 2AR। तो what we get, ये तो हमारा रिजल्ट हो गया 0 E इंटीग्रल DA2। एक बात याद रखिएगा, क्लोज सरफेस पे ही सिर्फ सर्कल हम यूज़ करते हैं, और कोई भी अकेला सरफेस जो है क्लोज नहीं है, इन सबको मिला के हमारा क्लोज सरफेस बना है, तो यहाँ इंटीग्रल पे कभी भी सर्कल आप यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो EDA2 प्लस EDA3 दैट इज इक्वल टू 2AR बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रल DA2 एंड इंटीग्रल DA3, देखिए ये DA2 हमने लिया था, तो इसका एरिया हमने क्या कंसिडर किया है, A। यही वाला सिलेंडर हमने यहाँ लिया है ना, दिस सिलेंडर हैज़ बीन टेकन हियर, ठीक है। और DA3 नीचे वाले का भी जो है एरिया क्या है, A है। तो यहाँ क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, EA प्लस EA दैट इज इक्वल टू 2AR बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 2EA इज इक्वल टू 2AR बाई एप्सिलॉन नॉट। A और A कैंसिल हो गया, और रो हमने नहीं लिया है, रो, अच्छा द 1 मिनट, चार्ज इनक्लोज से एक गलती किया है हमने, ये तो वॉल्यूम हो गया ना, वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी वी हैव टू टेक, चार्ज डेंसिटी हमने नहीं लिया था, सॉरी। अब चार्ज डेंसिटी ले लेंगे हम यहाँ पे, तो चार्ज डेंसिटी रो वी हैव टू टेक दिस वैल्यू, राइट। नाउ द रिजल्ट वी हैव 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट वी गेट E इज इक्वल टू रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आपको याद रहेगा। अब कैसे याद रहेगा, देखिए मैंने 3 पार्ट डिस्कस किया अभी आपका साथ। सॉलिड इज फेयर इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये किया था, याद है। Here rho was what, uniform। Now solid cylinder of infinite length inside, ये अभी हमने डिराइव किया था, E in is equal to rho r by 2 epsilon naught। Here also rho is what, uniform। और अभी हमने किया है thick चार्ज सरफेस, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या किया है, इट इज रो आर बाई, तो काफ़ी आसान है, याद रखना ये। हियर ऑल्सो रो इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द थिक चार्ज सरफेस। तो ये जो आपका थिक चार्ज सरफेस था, किसी इंटरनल पॉइंट पे हमने फील्ड फाइंड किया, इंटरनल पॉइंट। अब हम एक्सटर्नल पॉइंट पे आते हैं। नाउ वी कम टू E out। Outside the thick charged surface, right? So this one is the thick charged surface, say this one is the thick charged surface। एक पार्ट ले लिया हमने, इनफाइनाइट एरिया का था, तो इनफाइनाइट एरिया का एक पार्ट ले लिया हमने, एंड दिस वन इज द सेंट्रल प्लेन, है ना। दिस थिकनेस वाज डिफाइंड T। वी हैव टू गेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस R। हियर R इज ग्रेटर देन व्हाट, T/2। तो क्या करना होगा हमें, वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट P वेयर फील्ड इंटेंसिटी हैज टू बी डिटरमाइंड। तो यहाँ हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। अब कितना पार्ट गॉसियन सरफेस के अंदर है ये चेक करें, तो ओनली दिस पार्ट इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। दिस एरिया इज सपोज A। तो वी विल हैव टू फाइंड द चार्ज ऑफ दिस पार्ट ओनली, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। तो व्हाट इज चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस, Q in, that is charge density, it was given rho into
volume of this part. So this area is A, and this thickness is what? T, area of cross section into thickness of the cylinder, that is volume, AT, right? तो हमने Q in फाइंड कर लिया. Now similarly we use Gauss theorem. So now using Gauss theorem, see what we get, E outside into area. तो एरिया एक अपर प्लेट का है, दूसरा ये लोअर प्लेन का है, और तीसरे के लिए जो है क्या था, कर्व सरफेस के लिए it was 0, that is E electric field over the curved surface, area of the curved surface cos of 90 degree. फ्लक्स जैसे वहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. नाउ इट इज 1 by epsilon naught into charge enclosed. Charge enclosed is what here? Rho A T, right? So what we get? 2 E outside into A, that is equal to A rho T divided by epsilon naught. The result we have E outside is equal to rho T divided by 2 epsilon naught. See, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. यहाँ पे ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. दिस रिजल्ट इज यूनिफॉर्म. तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें, इनसाइड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस आर. नाउ वी ड्रॉ ग्राफ हियर. तो सपोज दिस was the thin sheet of infinite area. एक हमने ये लिया है, thickness was defined what? Then we study field intensity inside the cavity. देखिए, field intensity, electric field inside the cavity is non-zero and constant, non-zero and uniform. ठीक है, तो इस पार्ट को जरा हम डिस्कस करते हैं. सपोज वी हैव ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, और इसके अंदर से एक छोटे स्फीयर को हमने रिलीज किया. ठीक है, डायग्राम एक बार मैं समझा देता हूँ फिर से. यहाँ देखिए, field intensity inside the cavity we have to get, it is a sphere of given radius, right? Radius of the sphere is suppose r, और इस स्फीयर से हमने एक छोटे स्फीयर को हटाया, सपोज ये वाले स्फीयर को हटाया, एंड इट्स रेडियस इज r by 2. The center of C1 and this center is what? C2. So it is the cavity formed inside the sphere, and this sphere has uniform charge density rho. Now we have to get electric field intensity at this point P, which is at a distance r1 from the center of the first sphere and r2 from the center of the second sphere, right? और एक चीज का ध्यान रखना है, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म हियर. If charge density is uniform, then electric field inside the cavity is not equal to 0, and also electric field inside the cavity is constant, it is uniform. तो ये cavity generate कैसे हमने किया? See, it is a solid sphere, और इस solid sphere से हमने एक छोटे sphere को रिलीज कर लिया इस तरीके से. ठीक है, सेंटर C1, दिस सेंटर इज C2. चार्ज डेंसिटी रो, हियर आल्सो इट इज रो. यहां से ये वाले पार्ट को हमने रिलीज किया, तब ये हमारा कैविटी जेनेट हुआ, राइट? नाउ P इज द इंटरनल पॉइंट ऑफ द बिगर स्फीयर, it is r1, and also P is the
internal point of the sphere that has been released from the solid sphere. Okay, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जो है अभी हमने कैलकुलेट किया था. तो सपोज एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E1. तो फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, फॉर्मूला मैंने बताया था, इट इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट. E1 इज इक्वल टू रो, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट पी, इट इज एट अ डिस्टेंस R1, तो रो R1 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. And similarly, from the center of the smaller sphere, it is at a distance R2. And also inside the solid sphere, E2 is similarly rho R2 by 3 epsilon naught, right? Then, what will be the electric field intensity at point P? That will be E1 vector minus E2 vector. Release किया हमने. E1 is what? Rho R1 by 3 epsilon naught and E2 is rho R2 by 3 epsilon naught. The result we get is rho by 3 epsilon naught R1 minus R2. That is suppose equation 1. अब देखें see C1, this center is C2, this point is P, R1, and this distance is what? R2. Now using triangle of vector addition, we have R2 vector, sorry, R1 vector plus C1 C2 vector. We have R1 vector plus C1 C2 vector, R1 vector plus C1 C2 vector, that is equal to what? R2. Then we get R1 minus R2 is equal to C1 C2 vector, and this distance between the center as C1 and C2, that is suppose D. So this D is equal to what? It is constant, right? Triangle of vector addition use किया तो CD plus R2 is equal to R1 और C1 plus C2, C1 C2 plus R1 is equal to what? R2. Now the value in equation 1. So what we get, electric field intensity at point P is equal to rho by 3 epsilon naught C1 C2 vector, that is rho by 3 epsilon naught distance between the centers. So see, this result is non-zero and also D is non-zero, that's why the result is what? A constant, because distance between the centers is constant. अगर चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता? नॉन यूनिफॉर्म होता. तो ये तभी रिजल्ट है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओनली इफ द चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म. ओके, अच्छा, तो मान लीजिए कि दिस वन इज अ सॉलिड स्फीयर और इससे एक कैविटी हमने जो है एक छोटे स्फीयर को रिलीज किया to form a cavity, right? This radius is R, this radius is R by 2. So for this diagram, what is C1 C2? D, that is equal to R by 2. So hence electric field inside the cavity, that is rho by 3 epsilon naught into D by 2, that is rho D by 6 epsilon naught, right? That is R by 2, sorry, the distance is R by 2, that is rho R by 6 epsilon naught. Now we draw a diagram here, graph for this. This one is the field line
and this one is suppose position line. This one is the position line. It is R. It is also R. See, left side we have solid sphere. So inside the solid charged sphere, the electric field is directly proportional to R, and electric field intensity is maximum over the surface. So this result is what? Rho r by 3 epsilon naught over the surface, because E in is rho r, small r की जगह capital R हो गया. And as we go outside the sphere, this one is straight line. ये straight line है. E in directly proportional to R. As we go out, inversely proportional to electric field intensity EI. E out, it is directly proportional to, या inversely proportional to, क्या था फॉर्मूला करवाया था मैंने, R square, right? Now inside the cavity electric field intensity is rho r by 6 epsilon naught, that is half of what? This. तो अगर कोई कैविटी डिफरेंट रेडियस का भी दे रखा हो तो यू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी inside the cavity by getting the value of what? D. So this result is rho r by 6 epsilon naught, and inside the cavity this field is what? Uniform. तो ये कैविटी के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाया हमने यहाँ? यूनिफॉर्म. बट एज वी विल कम आउट ऑफ द कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional to R square. Okay, that is the graph. एक प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चन है. It is a previous year question. देखिए, we have two solid spheres of equal charge density, but charge का nature जो है वो क्या है? Opposite है. Here charge density is rho and here charge density is minus rho, and radii are equal. दोनों का radius equal है. Okay. अब जो है दोनों को overlap किया, और जो common रीजन हमारा आ रहा है, इसका इंटरनल एक पॉइंट भी है. हियर वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इसमें ये सोचना है कि बना कैसे. तो वन पार्ट इज दिस, इसका एक इंटरनल पॉइंट है, दैट इज P. दिस डिस्टेंस इज सपोज R1. इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दैट्स वाई फील्ड लाइन विल बी डाइवर्जिंग. प्लस दूसरा sphere है of the equal radius. This point is C1 and this point is C2. Now it is negatively charged, and equal charge density means oppositely charged है, but charge density. Now ये जो common region का point हमने consider किया है, this point is P and it is at a distance what? R2. Since it is negatively charged, field line क्या होगा यहाँ पे? Converging होगा. तो दिस फील्ड इज व्हाट? E2. अब दोनों को हमने कंबाइन किया. कंबाइन करने के बाद जो है हमारा ये डायग्राम फॉर्म हुआ. ठीक है. तो वी हैव E1 वेक्टर रो R1 by 3 epsilon naught and E2 वेक्टर इज रो R2. यहाँ D2 मैंने लिया है, कोई बात नहीं, रो R2 by 2 epsilon naught. नाउ वी कम टू दिस ट्राइंगल. दिस रेडियस इज R1, दिस वन इज R2. डायरेक्शन बेस्ड लिया है हमने, and this vector is C1 C2. Now use the triangle of vectorization. So R1 plus R2 that is equal to what? C1 plus C2. वहाँ हमने रिलीज किया टू फॉर्म द कैविटी, बट यहाँ पे कॉमन रीजन है, हमने यहाँ क्या किया है? कंबाइन किया है. कंबाइन करने के बाद ओवरलैप करके ये इंटरनल पॉइंट पे फाइंड करना है. तो कंबाइन करने के लिए जो है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पार्ट को ऐड करेंगे. ऐड किया तो वी गेट दिस रिजल्ट. बट व्हाट इज D1 प्लस D2? दैट इज C1 C2. तो इन प्लेस ऑफ D1 D2 वी पुट C1 C2. तो सी EP वी हैव rho by 3 epsilon naught
इंटू डिस्टेंस, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज d, so that distance is d. So the result is what? If charge density is uniform, the electric field intensity in the common region is non-zero and यूनिफॉर्म. ठीक है, अब इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपको ट्राई करके आना है. देखिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन ये है, कैविटी हमने जनरेट किया बाय रिलीजिंग अ स्मॉलर स्फीयर, दिस सेंटर इज C1 एंड दिस सेंटर इज C2. ठीक है, सेंटर का ये वाले पॉइंट को हमने P1 कंसिडर किया है. दिस रेडियस इज R, तो ऑब्वियसली दिस रेडियस विल बी व्हाट, R/2. So we have different points. One is P1. So we have to get electric field intensity at P1. So it is the internal part of what? The bigger sphere. While at the center of the sphere, released sphere, electric field intensity is what? 0. Release किया है तो हम क्या करेंगे? Subtract करेंगे. P2 पहले बिगर स्फीयर का, पूरे बिगर स्फीयर से जो हम फाइंड करेंगे P2 पे, फिर जिसको रिलीज किया उससे फाइंड करेंगे, देन अगेन विल बी सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है, अगर रिलीज कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर इस तरीके से कंबाइन किया जैसे यहाँ क्वेश्चन में आया था तो हम क्या कर रहे होते, ऐड कर रहे होते. सिमिलरली वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P3 इसका सरफेस पे और इसका क्या है, इंटरनल पॉइंट है. P4 इट इज P4, इसका सरफेस है बिगर का लेकिन इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पहले इसका सरफेस का निकालें, फिर इसका एक्सटर्नल पॉइंट का, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें. 5 इज हियर, इट इज 5. इसका बिगर स्फीयर का टेंजेंशियल पॉइंट सरफेस है, बट स्मॉलर स्फीयर का क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है. फॉर्मूले से आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का फॉर्मूला बताया हुआ. ई इंटरनल क्या बताया था, इट वाज ρr/3ε0, एंड व्हाट वाज ई एक्सटर्नल, इट वाज ρr³ डिवाइडेड बाई 3ε0 r². तो ये इंटरनल एक्सटर्नल के अकॉर्डिंगली फार्मूला यूज़ करते जाएंगे और रिजल्ट आपका आता जाएगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ एक क्वेश्चन लिया है हमने, ये ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा. कैविटी पे जो है 3-4 टाइम्स IIT में क्वेश्चन आया हुआ है. कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो काफ़ी इजी लगेगा ये. ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है. दिस वन इज़ अ सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, और इससे एक छोटे सिलेंडर को हमने रिलीज किया. सपोज दिस रेडियस इज R. ठीक है, अब यहाँ एक इंटरनल पॉइंट P1 है, तो वी हैव टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1. ओके, तो बिगर स्फीयर का इंटरनल पॉइंट है और जिस स्फीयर को रिलीज किया उसका भी इंटरनल पॉइंट है. तो स्फीयर के सिलेंडर का, तो सिलेंडर के लिए मैंने इनसाइड क्या बताया था, ρr/2ε0, और एक्सटर्नल का भी फॉर्मूला बताया हुआ है. तो बिगर सिलेंडर का कैलकुलेट करना है, फिर स्मॉलर सिलेंडर का, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, गेट द रिजल्ट. यहाँ देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है. वी हैव वन स्फीयर और स्फीयर ऑफ रेडियस R, इससे R/2 डायमीटर का एक हमने सिलेंडर को रिलीज किया, राइट. और सिलेंडर का इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस का फॉर्मूला मैंने डिराइव कर रखा है हमने गॉस थ्योरम में, वो रिजल्ट्स आपको याद होना चाहिए, और स्फीयर का भी नोन है. तो हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P1 पे फाइंड करना है. देन पॉइंट P2 इज it is P1, it is P2, suppose it is P2, it is P3. See, it is internal point of the sphere, but it is the surface of cylinder, जिस सिलेंडर को रिलीज किया है. P3, it is the surface of cylinder, sphere, but external point of the cylinder. फॉर्मूला जो है हम अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, रिलीज कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. P4 जो है ये सरफेस है स्फेयर का, बट सिलेंडर का क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट. तो अकॉर्डिंगली सारे पॉइंट्स पे यू हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये ज़रूर ट्राई कर लेंगे. ओके, और भी हैं क्वेश्चंस, ये देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2r, और इससे एक छोटे स्फीयर को हमने रिलीज किया, सी, टू फॉर्म अ कैविटी. ये कैविटी है. यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं,
suppose this point is P1, this point is P2 and this point is P3. Charge density is uniform. You have to get electric field intensity at P1, P2 and P3. यहाँ देखिए, it is a thick charge surface, अभी डिराइव करवाया था. It is a thick charge surface of infinite area. इससे हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर रिलीज किया और एक स्फीयर रिलीज किया. ठीक है, तो इससे जो है सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा. डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज T/4 वाइल डायमीटर ऑफ द स्फीयर जिसको रिलीज किया है इट इज व्हाट T/2. दिस डिस्टेंस इज वी हैव T/2 and charge density is uniform. This result is uniform. You have to get electric field intensity at P1, P2, P3, P4 and P5. ऐसे. Over these points you have to get electric field intensity. It is P4, P5, P4, P3, P1 and P2. तो जिसका भी इंटरनल है इंटरनल वाला फार्मूला और जिसका एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल वाला फार्मूला आप यूज़ कर रहे होंगे चूँकि रिलीज कर रहे हैं. और ऐसे ही अगर कंबाइन करते तो फिर हम क्या करते ऐड करते. मीन्स जैसे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था कि इट इज़ अ थिक चार्ज शीट ऑफ गिवन चार्ज डेंसिटी और ये एक स्फीयर इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, ओवरलैप कर गया कोई इंटरनल पॉइंट पे. वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते थे, यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कंबाइन कर रहे होंगे. ठीक है, जैसे IIT प्रीवियस IIT में क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, एक्चुअली वो क्वेश्चन जो है सेमेस्टर्स में जाएंगे तो एक बुक है ग्राफिटी का, तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही दिया हुआ है. ठीक है, नो नेक्स्ट. ये तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था आपका सर. ठीक है, 2 प्लेट सिस्टम है. हियर ऑल्सो वी हैव 2 प्लेट सिस्टम. सी your charge density is ρ1, it is positively charged and your charge density is ρ2, it is negatively charged. पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइन ऑफ फोर्स डाइवर्जिंग है और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है कन्वर्जिंग है. वी हैव टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी एट P1, P2 एंड P3. तो मैंने बोला था इसमें डायरेक्शन बेस्ड वर्क करना है. इट इज़ पॉजिटिव x एंड इट इज़ नेगेटिव x. तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखे पॉजिटिव लेना है और जो नेगेटिव डायरेक्शन में दिखे नेगेटिव लेना है. मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये आ गया. तो नाउ वी कम टू P2. दिस पॉइंट इज P2. P2 पे E1 इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो E1 इज नेगेटिव. द नियरेस्ट E2 इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. वैल्यूज पुट किया वी गेट द रिजल्ट σ2 माइनस σ1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. राइट, और अगर इफ σ1 इज इक्वल टू σ2 इज इक्वल टू सिग्मा, in that case electric field intensity will be 0. Right, now we come to P1. This point is P1. Electric field E1 is in the positive direction, E2 nearest is also in the positive direction. दोनों को ऐड कर दिया. and if σ1 is equal to σ2, in that case electric field intensity is 2 sigma by 2 epsilon naught. That is what sigma by epsilon naught. ये देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा होगा जब प्लेट्स पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो. इन दैट केस मैं आगे कैपेसिटर जब करवाऊंगा तो वहाँ डेरिवेशन आएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स वी टेक सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ इन द थर्ड पार्ट P3, E2 is in the negative direction, negative, and the nearest E1 is in the positive direction. Values put किया हमने तो ये रिजल्ट आ गया. And here also if σ1 is equal to σ2 is equal to sigma, the external region में electric field will be 0. Next question. Now we have 4 plates here with given charge density sigma, minus 2 sigma, 3 sigma and minus 4 sigma. Now for the first plate electric field is E1 तो डाइवर्जिंग, E2 कन्वर्जिंग चूँकि नेगेटिवली चार्ज है, E3 डाइवर्जिंग क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है दोनों साइड, E4 नेगेटिव चार्ज है तो दोनों साइड कन्वर्जिंग. सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड दिस कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव. तो मैंने कुछ पॉइंट्स का लिया है और पॉइंट्स का आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे P1 और P2 पे हमें फील्ड फाइंड करना है तो P1 दिस वन इज P2 से EP1 इज इक्वल टू सारे फील्ड्स जो है इफेक्टिव यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे. देखिए सबसे पहले इसका नियरेस्ट E2 विजिबल है नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन, इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन वी हैव टेकन नेगेटिव माइनस E2.
Now we come to nearest E3. See E3 is in the negative direction, minus E3. अब बचा E1 और E4. तो इस पॉइंट का नियरेस्ट E1 देखा, ये वाला लेंगे हम, ये वाला नहीं लेना है, जो नियरेस्ट है इसका ये, तो कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव, तो प्लस E1. अब E4 इसका नियरेस्ट ये नहीं लेना है, E4 इसका नियरेस्ट ये वाला, इट इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट्स वाई वी हैव टेकन. अब वैल्यूज आप पुट कर दें, तो माइनस E2 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E3 दिस 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. E1 चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई 2 epsilon naught. E4 charge density is what, minus 4 sigma, so we have to take with sigma by 2 epsilon naught. Means इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लेते हैं मॉड ऑफ सिग्मा बाई 2 epsilon naught. जो साइन है वो डायरेक्शन बेस्ड होगा, जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में है वी हैव टू टेक फील्ड पॉजिटिव, जो नेगेटिव डायरेक्शन में उसके लिए नेगेटिव लेना है. नाउ वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P2. सी इट इज P2. अब देखें E3, it is E3 is in the positive direction, positive. E4 nearest positive direction, positive. E1 come to E1, इस पॉइंट का E1 नियरेस्ट कौन सी डायरेक्शन में, it is in positive direction, that's why we have taken positive. And E2 is this nearest E2, it is in negative direction, that's why we have taken minus E2. तो आप अकॉर्डिंगली किसी भी पॉइंट पे वैल्यूज पुट करके फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें E3. what is E3? E3 is 3 sigma, okay, 3 sigma. What is E4? E4 is this plus 4 sigma by 2 epsilon. What about E1? E1 is sigma by 2 epsilon. What about E2 minus sign है यहाँ पे, mod of this minus 2 sigma by 2 epsilon naught. इसमें फील्ड का वैल्यू कभी भी चार्ज डेंसिटी का साइन का साथ नहीं लेंगे आप, ये डायरेक्शन बेस्ड होगा. तो फॉर्मूले में हमेशा मॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूज़ करना है. डायरेक्शन पॉजिटिव है पॉजिटिव साइन लें, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लें. एक और क्वेश्चन है, देखिए. सी यू हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये दो प्लेट्स हैं, दिस आर इनफाइनाइट प्लेट्स, finite area का प्लेट से. चार्ज डेंसिटी इज गिवन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो 1 के लिए फील्ड विल बी डाइवर्जिंग E1 और 2 के लिए भी फील्ड क्या होगा, डाइवर्जिंग. अब ये दोनों फील्ड्स सी सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज x and this coordinate is y positive. So what is electric field intensity at point P? See, E2 is along positive x coordinate, so it will be E2 I cap, and E1 is along positive y coordinate, that will be E1 j cap. Then electric field intensity at P mod value, it is E1 square plus E2 square. What is the value of E1 here? It is sigma 1 by 2 epsilon, right? E2 sigma 2 by 2 epsilon naught. यहाँ प्लेट्स हैं, चार्ज डेंसिटीज आर गिवन एंड वी हैव 3 डिफरेंट पॉइंट्स. वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट्स. अब जैसे P1 पे फाइंड करना है, तो देखिए See, if you have to get electric field intensity, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे. तो दिस साइड वी हैव E1, E2 अपवर्ड एंड E3 डाउन. तो कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया x एंड y. अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलें. सी E1 इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट्स वाई E1 I कैप. E2 पॉजिटिव y, E2 j कैप, एंड E3 नेगेटिव y माइनस E3 j कैप. इसका बाद जो है हमने सिंप्लीफाई किया और जो प्लेट्स पे चार्ज डेंसिटीज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करेंगे हम, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, राइट. अब एक ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे थिक प्लेट का. तो थिक प्लेट का जो है ग्राफ एक बार जो है चेक कर लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन ग्राफ फॉर
a thick plate. देखिए, this one is the thick plate we have. It is of infinite area and thickness t. This one is the central plate, central plane, central axis है. इसका नीचे एक लाइन लिया हमने. It is the electric field line, and this one is the position, right? This one is position. So if it is 0, it is t by 2. Inside the thick surface, charge density was uniform here. Electric field was uniform. Electric field, sorry, non-uniform, directly proportional to what? R. तो E inside मैंने बताया था आपको, it is rho r by epsilon naught. It is simply epsilon naught. E inside is directly proportional to R, while E outside is what? Constant. डिराइव किया था हमने. E outside के लिए ग्राफ is this, because electric field is uniform here, right? तो E outside के लिए जो है, the result was डिराइव किया था रिजल्ट. It is rho t by 2 epsilon naught, right? So it is E outside is rho t divided by 2 epsilon. Okay, this one is the graph. तो नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटी हम करेंगे. ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो रिलेटेड ग्रेविटेशन का पार्ट है, दैट विल बी डिस्कसिंग. और ये पार्ट फिनिश करने के बाद फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल, एंड जो है चार्ज बॉडीज, रेगुलर शेप्ड रिजिड बॉडीज का जो है फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल फाइंड करना, इस पे वर्क करेंगे. थैंक यू. सो वन मोर क्वेश्चन फॉर होमवर्क. Inner sphere has radius a and the outer sphere has radius b. और inner sphere का जो है charge density is given rho, which is uniform, and the outer annular sphere has charge density -2 rho, that is negatively charged. So you have to get electric field intensity at point P1, P2 and P3. General distance हमने R लिया है सबके लिए. And see, for P1 R is less than a, it is inside the inner sphere. P2, it is outside the inner sphere while out inside the external sphere, means that is annular sphere. R greater than A, less than B. And for the third point, R is greater than P. You have to get electric field intensity at P1, P2 and P3. आप गॉस थ्योरम यूज कीजिए और ट्राई कीजिए इसको. थैंक यू.